Hello students, today I am going to introduce about the next chapter, that is S block element. Before starting the S block elements, first of all we will discuss about periodic table of the element. Okay. In this periodic table, these two are the S block elements. These 13 to 18 group, these are P block element. And 3 to 12, these are D block element. And last, that is F block element. Okay. So today I will start the S block element. S block elements involves the two groups, group number 1 and group number 2 series. Group number 1 is called as alkali metals. Okay. In this case, elements are hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. Second group number 2, alkaline earth metals. Beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. Okay, these are the elements present in the alkaline earth metals. So group number 1 I will discuss. In group number 1, this is called as alkali metals, and this group includes all these elements. Why these are called as alkali metals? Because they form hydroxide on reaction with water, and which is a strongly alkaline in nature. Okay. In the s block elements, the last electrons enter in the s orbital, so this is called as s block elements. S orbitals that can accommodate only 2 electrons, means S orbital जो होता है बेटा वो केवल 2 ही electrons fill कर सकता है maximum. Okay. It involves the two groups. 2 ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं बेटा. अभी आपने पीरियोडिक टेबल में जैसे ही देखा है, आपका जो फर्स्ट ग्रुप है, दिस इज फर्स्ट ग्रुप, दिस इज सेकेंड ग्रुप. ठीक है. तो 2 ग्रुप्स आर बिलोंगिंग टू द S block element. The general electronic configuration of S block element is NS1 और NS2. बेटा जो ग्रुप 1 है उसकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी NS1. Here N number is changes, that is the number of shell. 1 2 3 4 5 6 7 cells. Okay. Group number 2 having the configuration NS2. Here N number is changes, that is 1 2 3 4 so on. Okay. So NS1 means here the 1 valence electrons are present in the alkali metals, and NS2 means 2 electrons are 2 valence electrons are present here. Okay, valence electron means the electrons which are present in the outermost shell. This is called as valence electrons. नाउ व्हाट इज़ अल्कली मेटल्स? अल्कली मेटल्स को ग्रुप 1 बोलते हैं. ग्रुप 1 में आते हैं बेटा सारे. ग्रुप 1 एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें एक ही इलेक्ट्रॉन्स होता है वैलेंस शेल में. अभी मैंने लिखवाया है कॉन्फ़िगरेशन NS1. इट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल. It does not occur in the native or free state. These element is called as the alkali metals because their oxides and hydroxide that form the strong base, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज, दैट इज NaOH एंड KOH. ठीक है. एल्कलीज क्या होते हैं बेटा? जो वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एल्कलीज. ओके. लिथियम इज नॉन एज द ब्रिज एलिमेंट. ठीक है, जुड़ा हुआ एलिमेंट होता है ये. ठीक है. नाउ व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अल्कली मेटल्स? फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इन दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, here the electronic configuration is NS1. देखो बेटा, these are the elements which are included in alkali metals. At the topmost hydrogen is present, but hydrogen is a non-metal. Okay, then others are metals. lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium और francium. ठीक है, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लर्न कर सकते हो. ली ना कै रब कस फर. ओके. What is the atomic number of these elements? Lithium 3, sodium 11, potassium 19, rubidium 37, cesium 55, francium 87. Electronic configuration is
फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन है बेटा, हाइड्रोजन नॉन मेटल है इसलिए इसको इंक्लूड नहीं किया, उसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होती है। आफ्टर दैट हाइड्रोजन के बाद आता है लिथियम, लिथियम 2s1 बेटा, शेल चेंज होंगी, सिर्फ ये वाला जो n नंबर है ns1 कॉन्फ़िगरेशन है, n नंबर चेंज होगा। लिथियम के लिए 2 शेल है, सोडियम 3, पोटाशियम 4, रुबिडियम 5, सीजियम 6 और फ्रेंशियम 7। ओके, तो ये सेल्स आपकी प्रेजेंट होंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन in the valence shell they shows the paramagnetic nature, ठीक है, and they show the +1 oxidation state. Okay, so these elements easily form monovalent ions by losing the 1 electrons. Okay, जैसे लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, पोटाशियम पॉजिटिव, ओके, और रुबिडियम पॉजिटिव, सीजियम पॉजिटिव, अगर इन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये क्या बन जाते हैं, डायामैग्नेटिक बन जाते हैं। ठीक है, वैसे ये कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक। जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देते हैं तो इन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से ये अपना जो नेचर है वो इनका डायामैग्नेटिक बन जाता है, मीन्स सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हो जाते हैं। डायमैग्नेटिक मीन्स ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहता, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाते हैं, इसलिए एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तो फर्स्ट बेटा हम देखते हैं एटॉमिक रेडियाई। अल्कली मेटल्स हैव द बिगेस्ट एटॉमिक रेडियाई इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं, मीन्स लिथियम से लेके बेटा कहाँ तक आते हैं, हम जाते हैं फ्रेंशियम तक। ठीक है, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं डाउन द ग्रुप, एटॉमिक नंबर ऑफ द अल्कली मेटल्स इंक्रीजेस। ठीक है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर क्यों बढ़ता है, क्योंकि बेटा इसमें जो आपके न्यू सेल्स होती हैं वो ऐड होती रहती हैं। अब नई सेल्स ऐड होंगी तो इसमें क्या होगा, जो शिल्डिंग इफेक्ट होता है वो वहाँ पे ज़्यादा होगा। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट इज ग्रेटर ओवर द न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, उसको प्रीडोमिनेट बोलेंगे, शील्डिंग इफेक्ट प्रीडोमिनेट ओवर द न्यूक्लियर चार्ज। ओके, दैट्स वाई क्या होता है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है, क्योंकि साइज बढ़ता है बेटा, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, साइज बढ़ता है, तो साइज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियाई भी बढ़ेगी। ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट इज ग्रेटर इन दिस केस as compared to the nuclear charge. Now next is ionic radii. Ionic radii of alkali metals are much smaller than the corresponding metals. अब आयनिक रेडियाई कम क्यों होती है बेटा, क्योंकि इसमें क्या होता है, लेसर नंबर ऑफ सेल्स एंड कॉन्ट्रैक्टिव इफेक्ट ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि बेटा जितना छोटा साइज होगा उतना न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, स्मॉल साइज हाई न्यूक्लियर चार्ज, तो सेल्स कम हो जाएंगी। सेल्स का नंबर जैसे ही कम होगा बेटा, सेल्स कम है तो चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे वहाँ पे क्या होगा बेटा, आयनिक रेडियाई भी इंक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगी, साइज बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाएगा, इस वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो हमारा जो साइज़ है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको देखो 2 केसेस लेने हैं, ध्यान से सुनो। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई जो होती है वो पीरियड के अकॉर्डिंग, जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो बेटा आपका क्या होता है, पीरियड शो होता है। ठीक है, और जब आप डाउन द ग्रुप आते हो ये आपका ग्रुप होता है। तो केस नंबर 1 ये है कि आयनिक और एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई दोनों की दोनों इंक्रीज होती हैं जब आप डाउन द ग्रुप आते हो। ठीक है, तो आप सीधा आंसर बताओगे, बिकॉज एटॉमिक एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, ओके, डाउन द ग्रुप, सो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शेल of electrons also increases, so due to this screening effect predominate over the nuclear charge. Okay, but as we move from left to right in a period, then atomic and ionic radii decreases. क्यों होती है बेटा, बिकॉज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज अलोंग अ पीरियड बट न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो इंक्रीज। अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इट मीन्स
साइज़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर साइज़ डिक्रीज़ होगा तो रेडियस भी डिक्रीज़ हो जाएगी। ओके, ये देखो बेटा इधर, जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, एटॉमिक साइज और एटॉमिक मास इंक्रीजेस, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन द एटॉमिक मास इज मोर एज कंपेयर टू इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज। अब क्वेश्चन पूछे कि डेंसिटी ऑफ पोटाशियम इज लेसर देन द सोडियम। अगर हम देखते हैं तो ली ना कै, तो आपका देखते हैं पोटाशियम जो होता है वो हल्का होता है एज कंपेयर टू सोडियम से। ठीक है, तो क्यों बेटा, बिकॉज एबनॉर्मल इंक्रीज इन द साइज ऑन मूविंग फ्रॉम सोडियम टू पोटाशियम। यहाँ से यहाँ तक जब आते हैं तो साइज़ क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, साइज़ बढ़ने से बेटा वैसे तो मास भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बट क्या होता है, डेंसिटी इसकी पोटाशियम की ज़्यादा होती है, ये हल्का होता है। ठीक है, तो डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, मास बाय वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्या है, मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी भी बढ़नी चाहिए, बट ये एक एक्सेप्शनल केस है, तो इसमें हम बताएंगे एबनॉर्मल इंक्रीज इन द साइज। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। ओके, दूसरा रीजन आप इसमें ये बता सकते हो बेटा कि जो पोटाशियम होता है वो क्या होता है, हल्का होता है एज़ कम्पेयर टू सोडियम। ठीक है, एक तो आपने रीज़न बताया कि अनयूजुअल इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज। ठीक है, एटॉमिक साइज जो होता है अनयूजुअल इंक्रीज हो जाता है। दूसरा आप इसमें रीजन ये दे सकते हो कि जो डेंसिटी होती है वो मास बाय वॉल्यूम होती है बेटा। इट मीन्स अगर एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो आप इसमें ये रीजन भी दे सकते हो, ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स एटॉमिक वॉल्यूम। नेक्स्ट है बेटा सॉफ्टनेस। सॉफ्टनेस में दीज मेटल्स आर सॉफ्ट मेलेबल। मेलेबल क्या होता है बेटा, जिसको आप आसानी से हैमर से क्या कर सकते हो, ब्रेक डाउन कर सकते हो। ठीक है, इनटू अ थिन शीट। ओके, थिन शीट की फॉर्म में। डक्टाइल नेचर होता है क्योंकि मेटल्स हैं, तो ये क्या प्रोड्यूस, मतलब अगर इसको हम एक वायर की फॉर्म में ड्रॉ करना चाहें तो उसमें भी ये आ सकता है। ठीक है, वायर की फॉर्म में भी। और जो सॉलिड्स होते हैं उनको हम नाइफ से इजीली कट कर सकते हैं, जैसे सोडियम है बेटा, पोटाशियम है। ठीक है, दीज मेटल्स हैव मेटेलिक लस्टर। ठीक है, व्हेन फ्रेशली कट, जब इनको हम फ्रेशली कट करते हैं तो मेटेलिक शाइनिंग भी शो करता है ड्यू टू द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं इस वजह से। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ अल्कली मेटल दैट इज हाईएस्ट इन ईच पीरियड, हाईएस्ट होती है। ठीक है, एंड गोज ऑन डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीज होती है, इस वजह से इसकी डेंसिटी क्या होती है बेटा, कम होती है। नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल्स दैट इज लोवेस्ट। क्या होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी, मीन्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, to lose the electrons from the isolated gaseous atoms so that the atoms acquire the positive charge. okay, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की जो एनर्जी है दैट इज़ लोवेस्ट होती है, क्योंकि बेटा इसकी कॉन्फ़िगरेशन है NS1, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा तो इसके पास NS0 बन जाएगा। ठीक है, इसलिए डाउन द ग्रुप क्या होता है, ये डिक्रीज होती जाती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन अगर हम लेफ़्ट टू राइट ऐसे मूव करते हैं पीरियड में तो ये क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी लोअर होती है, बट जो आपके सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी अल्कली मेटल्स की वो बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों, देखो बेटा ये इसलिए होता है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हुआ है तो आयन उसको एक्वायर कर लेगा। जैसे NS1 है तो ये NS2 बन जाएगा और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा। तो रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अब ये स्टेबल बन गया, स्टेबल बनने के बाद इसको रिमूव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज
तो इसलिए हम इस केस में हम देखो ये लेंगे बेटा, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी हमारे पास, डिक्रीज हो जाएगी बेटा, क्योंकि increase nuclear charge and the outermost electrons that is very well screened from the nuclear charge. Okay, so screening effect क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. Okay, now next is electropositive or metallic character. Alkali metals are most electropositive elements in the periodic table. ठीक है, देयर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप. जैसे जैसे बेटा नीचे जाते हैं मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है. क्यों बढ़ता है बेटा, बिकॉज द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स वेरी इजीली. ठीक है, जैसे इसमें NS1 है तो ये क्या होता है, अपना इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, तो ये अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आसानी से लूज कर सकता है और अपने ऊपर क्या लेके आता है, पॉजिटिव चार्ज लेके आता है. ठीक है, तो ऑल द मेटल्स जो होते हैं वो क्या हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है. ठीक है, अब जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है बेटा वो डिपेंड करता है, मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है या मेटेलिक नेचर होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, आयनाइजेशन एनर्जी पे. So due to the isolation of free electrons they show the metallic luster. Okay, so electropositive nature increases from lithium to cesium due to the decrease in the ionization enthalpy. Now next is oxidation state. Oxidation state of alkali metals that shows only +1 oxidation state. ठीक है, because they are shows the unipositive ions and they attain the stable noble gas configuration. Alkali metals ions attain the noble gas configuration with unpaired electrons. So they are with no unpaired electrons. It means they are diamagnetic. और diamagnetic है बेटा तो वो इसके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, तो क्या हो जाता है, पैरा वो ऑल आर इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप हो जाते हैं इसके इलेक्ट्रॉन सारे के सारे. ठीक है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो तो वो पेयरिंग हो जाती है. अल्कली मेटल्स हैव पैरामैग्नेटिक नेचर ड्यू टू द 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. ओके, now next is flame coloration. Alkali metals and their salt that impart characteristic colors to the flame. ठीक है, तो मतलब ये अगर बेटा इनको फ्लेम के पास लेके जाते हैं तो एक कलर प्रोड्यूस करते हैं. जैसे क्यों कलर प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज द आउटर इलेक्ट्रॉन्स दैट गेट एक्साइटेड टू द हायर एनर्जी लेवल्स एंड व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स returns to its original state then it release the visible light of characteristics wavelength and it provides the color to the flame. For example, lithium crimson red color, sodium yellow color, potassium violet color, rubidium red violet color, cesium blue color. Okay, so they produce a particular color. These metals have a tendency of giving the characteristics color to the flame. They can be detected by the flame test. Okay, तो इनका flame test होता है बेटा. बट सीजियम एंड पोटाशियम, जो आपकी सीजियम है और एक पोटाशियम है, दे एक्ट एज अ इलेक्ट्रोड इन द फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स. ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में इलेक्ट्रोड का काम करता है. नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. Due to very low ionization enthalpy, alkali metals like cesium that shows the photoelectric effect. ठीक है, photoelectric effect means जब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स मेटल के सरफेस पे गिरता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं और उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. Due to the presence of loosely held valence electrons which are free to move throughout the metal structure. ठीक है, तो जो अल्कली मेटल्स होते हैं बेटा वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं बिकॉज उनके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है मूव करने के लिए. ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है. तो बेटा टॉप टू बॉटम जाते हैं तो लिथियम है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये आपका इंक्रीज हो जाएगा. ओके,
Now last is reducing character. All the alkali metals are good reducing agent due to their low ionization energy. Their reducing character किस ऑर्डर में आएगा बेटा? पहले लिथियम, सीजियम, रुबिडियम, पोटाशियम एंड सोडियम, ठीक है, क्योंकि इनमें आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? लो होती है. नाउ नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स. ठीक है, अल्कली मेटल्स दैट आर हाईली रिएक्टिव ड्यू टू लो आयनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक है, दे नेवर अकर इन फ्री स्टेट. इनकी जो रिएक्टिविटी है मेटल्स की, मीन्स द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स दैट इज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप. तो इसमें बेटा फर्स्ट रिएक्शन आती है रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एयर. ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर देयर सरफेस गेट टर्निस्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स. फॉर एग्जाम्पल बेटा सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम ऑक्साइड बनाता है. ठीक है, ठीक है, और ये आपका जो है नेक्स्ट, इसमें क्या होता है बेटा, देखो सोडियम अगर रिएक्ट कर रहा है तो ये बनाएगा परऑक्साइड. ये परऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट है. ठीक है, हाइड्रोक्साइड भी बनाएगा, कार्बोनेट भी बना सकता है, CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो. ठीक है, तो ये चीज़ ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स और कार्बोनेट्स बनाएगा. इस वजह से ये क्या होता है, अलग अलग नेचर शो करता है. तो सोडियम मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको कैरासिन ऑयल में रखते हैं. लिथियम को भी हम पैराफिन वैक्स में रैप करके रखते हैं, क्योंकि जो लिथियम होता है वो फ्लोट करता है कैरोसिन ऑयल के सरफेस पे, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है. तो बेटा जो लिथियम होता है वो मोनोऑक्साइड बनाता है, सोडियम जो होता है परऑक्साइड बनाता है, और कुछ जो अदर मेटल्स होते हैं वो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं. ओके, क्योंकि उनका साइज़ जो होता है बहुत लार्ज होता है. जैसे पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं. फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा होता है बेटा, CCl4 होता है. ठीक है, किसकी वजह से होता है, अल्कली मेटल्स की वजह से होता है. यहाँ देखो बेटा, एक्शन ऑफ ऑक्सीजन. All the alkali metals when heated with oxygen that form a different types of oxides. Lithium form lithium oxide, sodium form sodium peroxide, potassium, rubidium and cesium for superoxides. The stability of peroxides and superoxide that increases as the size of alkali metals increases. Okay. Superoxides are colored and paramagnetic. क्योंकि इसके पास क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड पेयर होते हैं, वेयर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट हेयर. ओके, सी पार्ट, ऑल द ऑक्साइड्स, परऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स दैट आर बेसिक इन नेचर. द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेज इन द ऑर्डर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटाशियम, फिर सीजियम. बेटा ठीक है, इस ऑर्डर में इंक्रीज होगा. पहले सीजियम आएगा सबसे पहले, फिर पोटाशियम, सोडियम एंड लिथियम. Sodium peroxide that are yellow in color due to the presence of superoxides as an impurity. Okay. Now next is KO2, potassium superoxide, that is used as a source of oxygen in the submarines, space shuttles and in emergency breathing apparatus such as oxygen mask. Okay, so all these are the chemical properties of alkali metals. Thank you students.